Hi guys. Firstly, wishing you all a very happy Navratras, and I hope uh, this is and a very happy Gudi Padwa to all of you, and uh, a very happy Ramadan Mubarak. So I hope this is going to be a very auspicious period for all of us, for our country at large. And yes, so we just wanted to start this video on this auspicious note. And thank you so much for showering your love and blessings again on the last video which I made, which was my cricket analysis. And as I promised you in my last video, that very soon I'll be making another video, and that is going to be on politics. Not conventional politics, but this is so I'll be in this video. Basically, what I'll be doing is that I'll be debating on the hot topic, and it's going to be an interaction between me and you guys, and I'll be decoding the 2024 Lok Sabha elections. Now, this is not a conventional poll or a survey, but it's more like an interaction, and I'll be telling you what I think about the results and what are going to be my predictions. Uh, I'll Since it's going to be a video of about half an hour, so I cannot go seat to seat, but I'll try and cover as many things as possible in this video. And I'm going to give you my take on various states, and this नारा ये जो हम सुन रहे हैं इस बारी, whether this is going to be 400 पार for BJP, इस बारी 400 पार. So is BJP or NDA going, I mean, for their what you call target, which is, are they going to cross 400 this time? इस बार मोदी जी 400 पार लाते हैं या नहीं? That is a hot topic, which is a topic of discussion everywhere. हर जगह यही चर्चा है. So इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे. एंड आई एम गोना, एज आई सेड, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी चीज़ें कवर कर सकूँ और अपना प्रोडिक्शन दे सकूँ. और मैं आपको एक ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि हाउ आई हैव कम टू माई प्रोडिक्शन. सो वन थिंग इज़ रिसर्च. I've done a lot of research, I've read a lot of articles, I've seen a lot of opinion poll surveys, I've listened to a lot of experts, a lot of spokespersons from various parties, a lot of organizations. So that is one thing which is going to be an indicator of my opinion. Second thing is that I myself have traveled a lot across the country and the state where I live. So I'm basically, like, I live in Gurgaon, I'm from Haryana, and I spend a lot of time in Delhi, and I spend a lot of time in the nearby states, UP, Rajasthan, Punjab. Other than that, I do travel for work and for pleasure to various other states, Bombay, Maharashtra, sometimes few northern states. So वहाँ पे जो जो जैसी जैसी हवा बन रही है, and I've so I cannot say that I have a sample size. जैसे पोल सर्वेस में जो पोलस्टर्स हैं वो एक सैम्पल साइज लेके चलते हैं, जिसमें वो वीडियो कॉल्स के थ्रू या 1-to-1 या वेरियस रीजन से वो लोग अपना सैम्पल साइज जो लेते हैं उसमें फिर वो अपना अपना वोट ओपिनियन लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन दे कम अप विथ अ फाइनल फिगर. आई हैव डन समथिंग डिफरेंट. आई हैव केप्ट इट लाइक एन इंटरैक्शन. सो मैंने एक देश में जितने भी तबकों के लोगों से जो मैं मिला हूँ, गरीब अमीर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, people related to infrastructure, government employees, defense, people related to the sports industry, people related to the entertainment industry. मैंने सबके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेक्शन करने की कोशिश की है, जिससे मैं एक आप लोगों तक एक करेक्ट फिगर पहुंचा सकूं जो देश में इस समय जो हाल है, जो माहौल है. सो दिस कुड बी थ्रू वेरियस वेज. जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से जो मुझे अनएम्प्लॉयड मिले उनसे पूछा कि अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है, क्या उनके लिए मुद्दा है या नहीं, महंगाई, इन्फ्लेशन, क्या उनके लिए मुद्दा है या नहीं. And I've included people from, as I said, different segments of the society. Just since I'm a lawyer, so I have interacted with a lot of what you call court clerks, people working in the court, in the corporate industry, people working in different fields, what perspective they have from the legal profession, translating it into their political opinions. ऑफिस में जो लोग सफाई कर रहे हैं,
उनका क्या टेक है। अगर मैं किसी शॉप में जाता हूँ तो शॉपकीपर्स क्या सोच रहे हैं, अगर मैं किसी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ तो ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, अगर मैं अपने ही जैसे किसी प्रोफेशनल से मिल रहा हूँ, या अगर मैं किसी डिफेंस फोर्सेस के जनरल के साथ बैठा हूँ या मेजर के साथ बैठा हूँ तो उनका क्या टेक है। सो एज आई सेड, मैंने तरह तरह के प्रोफेशंस, कास्ट, रिलीजन्स को कवर करने की कोशिश की है, उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस को कवर करने की कोशिश की है। और जिन जगहों में मैं पर्सनली ट्रैवल नहीं कर पाया हूँ, वहाँ जो लोग ग्राउंड पे हैं और जिन लोगों को पॉलिटिक्स की और अपनी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो रहते हैं उसकी एक अच्छी समझ है, मैंने उनसे बात करके अपने प्रेडिक्शंस लिए। तो उसके बेसिस पे मैं ये अपना एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आई विल बी प्रेडिक्टिंग हु इज़ गोना गेट हाउ मेनी सीट्स एट द एंड ऑफ दिस 2024 लोकसभा इलेक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं अपने देश को 4 जोन्स में डिवाइड करना चाहूँगा, जो हम सब जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब जो ये हॉट मुद्दा भी एक है अब की बार 400 पार, ये whether BJP is gonna cross 400 seats, which is the most important thing. I mean, no, important not just for them. Like the most important is not the right word. I would say this is the thing which is being debated upon. Like nobody is above the nation, and I'm doing it in my uh, neutral space. I'm doing this entire survey, not technically a survey, but my opinion, my prediction, whatever I'm giving, is it in completely neutral space, despite of not agreeing with the opposition on a lot of issues, despite of not agreeing with the government on a lot of issues, but I'm doing this as an Indian in complete neutral space. तो जब हम नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट का जिक्र करते हैं दोस्तों, सो नॉर्थ और वेस्ट में एनडीए और बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, और ये पिछले 2 इलेक्शंस में भी देखा गया है। ये कम्प्लीटली, अगर आप सीट बाइफर्केशन देखोगे तो लोकसभा में 543, देयर आर अबाउट 443 सीट्स इन आर लोकसभा। उसमें से तकरीबन अगर आप बाइफर्केशन करोगे तो 300 सीट्स आर फ्रॉम नॉर्थ एंड वेस्ट एंड अबाउट 243 सीट्स आर फ्रॉम साउथ एंड ईस्ट। अब ये जो 300 सीट्स हैं, इनमें पिछले 2 इलेक्शंस में भी देखा गया और इस इलेक्शन में भी यही सेम प्रेडिक्शन है कि एनडीए और भाजपा का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये इसको कम्प्लीटली स्वीप करते हैं। तो पहले तो क्विकली मैं इन्हीं स्टेट्स का एक ये मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं करूँगा, मैं उन स्टेट्स को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में करूँगा जहाँ बीजेपी को अच्छी सीटें लानी पड़ेंगी अगर उन्हें 400 क्रॉस करनी। और मैं कुछ स्टेट्स ये भी बताऊँगा जहाँ पे, हालांकि कांग्रेस के जो हाल चल रहे हैं इस समय देश में, बट गिने चुने स्टेट्स हैं जहाँ वो लीड में हैं या जहाँ से उन्हें कुछ फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। मोर और लेस आई थिंक दिस इज़ नॉट गोना बी अ वेरी एनकरेजिंग इलेक्शन फॉर द कांग्रेस. I think they are to be blamed for themselves considering the way they've worked, or they cannot blame, Congress cannot blame anyone else. So okay, so जैसे हम नॉर्थ और वेस्ट का जो हम जिक्र करते हैं, तो इसमें जो 6-8 मोटी मोटी सीट्स हैं वहाँ भाजपा और एनडीए पूरा स्वीप कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम गुजरात इटसेल्फ, फ्रॉम वेयर आवर प्राइम मिनिस्टर कम्स अगेन. 26 की 26 सीटें, ऑल 26 सीट्स आर गोइंग टू बीजेपी. आई डोंट सी, जितना भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है गुजराती से, बी इट फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, बी इट फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट, बी इट फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोफेशन, Gujaratis want their man back. Narendra Damodar Das Modi is coming back for them. There is no competition. एक जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन था, इस वाला नहीं, पिछला वाला, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी को 99 पर रोका था, उसमें कांग्रेस ने अच्छी फाइट करी थी. बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि और कोई पार्टी है नहीं, आपका भी बहुत बुरा हाल है और कांग्रेस ने हाथ ही खड़े कर दिए और उन्होंने बोला जाइए आप जीतिए इलेक्शन. तो गुजरात में तो ये हाल है. सो इट्स 26 आउट ऑफ 26. वही सेम हाल राजस्थान में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अशोक गहलोत एंड सचिन पायलट गेव अ गुड फाइट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, जो विधानसभा के चुनाव थे, उसमें अच्छी फाइट दी उन्होंने. लेकिन लोकसभा में इट्स वन वे ट्रैफिक, 25 की 25 सीटें अगेन भाजपा को. वही हाल आपका मध्य प्रदेश का है. पिछली बारी मध्य प्रदेश में एक सीट थी छिंदवाड़ा की, जो कमलनाथ के जो बेटे हैं नकुलनाथ, वो उन्होंने निकाली थी,
और इस बारी भी वही सीट है। अगर मध्य प्रदेश में कोई सीट आती है कांग्रेस को तो वही सीट है। बड़े जो लीडर्स हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश में ही नहीं, उन्होंने हर जगह ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। दिग्विजय सिंह सुनने में आया चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके अलावा जो भी बड़े नाम हैं अभी नहीं, राहुल गांधी वायनाड से वापस लड़ेंगे, बट उसके अलावा जो भी बड़े नाम हैं अभी उनका कुछ अता पता नहीं है वो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वो लड़ भी रहे हैं या नहीं। तो यही छिंदवाड़ा की एक सीट है जो मेरे ख्याल से 28 से 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें से बस एक ही सीट है जो कांग्रेस निकाल सकती है। अगेन 26 से 27 सीटें वापस बीजेपी की झोली में जाती हुई दिख रही है। ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं हमारी, माउंटेन स्टेट्स, हिमाचल, उत्तराखंड, 5 में से 5 सीटें, 4 में से 4 सीटें, इन दोनों स्टेट्स में मिला के 9 सीटें हैं। 9 की 9 बीजेपी को जाती हुई नज़र आ रही हैं। हिमाचल में कांग्रेस कुछ फाइट पुटअप कर सकती थी, बट उनकी स्टेट मतलब जो उनके विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद विद इन कांग्रेस बहुत सारे फ्रैक्शंस देखने गए हैं, और वीरभद्र सिंह की जो फैमिली है और कांग्रेस का जो हाई कमांड है, और वहाँ पे एक प्रोग्रेसिव लोकसभा इलेक्शन के लिए जो कैंपेन होना था वो नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। उत्तराखंड में भी आप सेम कह सकते हो। Delhi again, it's a 7-on-7 for BJP according to me. Considering I'm from Gurgaon, I spend a lot of time in Delhi. I don't see Delhiites in the mood to vote for either आप और कांग्रेस, हालांकि वो मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल going to jail has made matters worse for आप and in fact for both कांग्रेस। और बहुत सी जगहों में आप देखोगे तो ये जो ये इंडी अलायंस है, ये आपको अननेचुरल लगेगा। जैसे बहुत जगहों में ये लोग कर रहे हैं, अब जैसे केरला में ये लेफ्ट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और ये कहते हैं कि लेफ्ट हमारी, तृणमूल के ये वेस्ट बंगाल में ये लेफ्ट के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इनसे अलग लड़ रही है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ ये स्टेट इलेक्शंस में अलग लड़ रहे हैं लेकिन ये लोकसभा इलेक्शंस में एक साथ हैं। कहीं ये, अब जैसे आप अगर पंजाब और दिल्ली का जिक्र करो, अब आपके साथ इन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में सीट शेयरिंग कर ली है 4-3, लेकिन पंजाब में ये कह रहे हैं हम उसी सेम पार्टी के अगेंस्ट लड़ेंगे जिनके साथ हम दिल्ली में हैं। तो ये चीज़ें जनता को कंफ्यूज करने वाली हैं कि एक तरफ आप लेफ्ट के अगेंस्ट लड़ते हो, आप के अगेंस्ट लड़ते हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम संविधान बचाना चाह रहे हैं और ये हमारा पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जनता को भी बहुत ही अननेचुरल फील होंगी। बीजेपी ने भी बहुत सारे लोगों को वेलकम किया है जिनको वो करप्ट बताते थे, लेकिन बीजेपी का स्केल इस समय अप है। तो अगर बीजेपी में कोई जुड़ रहा है तो बीजेपी ये बोलेगी कि हम तो वैसे ही जीत रहे हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ऑपोजिशन ज़रूर ये सवाल करता है। मैंने एक इंटरव्यू में रिसेंटली सचिन पायलट को सुना था बोलते हुए कि अगर आप इतने स्ट्रांग हो तो आप हमें क्यों ले रहे हो। उसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि टैलेंट इज़ वेलकम फ्रॉम ऑल पार्टीज टू अ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट वेयर दे थिंक दैट दे कैन मेक अ डिफरेंस। एक मैंने फ़ोटो देखी थी, उसमें राहुल गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देओरा, सचिन पायलट, जितेंद्र प्रसाद, RPN सिंह सब खड़े हैं और अब वो सब भाजपा में आ चुके हैं। रिसेंट एंट्री मिलिंद देओरा की हुई और ये सब स्टॉन्च कांग्रेसियों के बेटे हैं। मुरलीधर देओरा हो गए, माधवराव सिंधिया हो गए, तो ये सब स्टॉन्च कांग्रेसी अपने टाइम पर रह चुके हैं। और इन सब के बेटे जिन्हें राहुल गांधी के बहुत क्लोज माना जाता है, ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड टू बी ऑल क्लोज एड्स ऑफ राहुल गांधी, वेरी क्लोज टू हिम, दे वर्कड हैंड इन हैंड with him, and all of them, if they are coming to BJP now, Sachin Pilot said that अगर हम इतने अच्छे हैं तो हमारे पास क्यों आ रहे, आप तो खुद ही जीत सकते हो। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब उनको वहाँ कांग्रेस में, एक तो कांग्रेस, आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस यही इलेक्शन नहीं, अनलेस अनटिल कुछ बहुत ड्रास्टिक हो जाता है और बीजेपी कोलैप्स हो जाती है, RSS कोलैप्स हो जाती या कुछ बहुत गलत चीज़ देश में हो जाती, ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस अगला इलेक्शन या अगले से अगला इलेक्शन भी जीतेगी। और ऑपोजिशन में भी जब आप हो तो आप एक वेस्टेड
एंटिटी हो, क्योंकि ऑपोजिशन उस किस्म के सवाल उठाती ही नहीं है। और जो मुद्दे हैं, अगर यूसीसी की बात होती है या राम मंदिर की बात होती है या ट्रिपल तलाक की बात होती है या आर्टिकल 370 की बात होती है, तब इन सब लोगों को कहा जाता है कि आप अपना इंडिविजुअल स्टैंड नहीं दे सकते, आपको पार्टी का स्टैंड देना पड़ेगा। पार्टी का स्टैंड वैसे ही कंफ्यूजिंग होता है। अब और वो जिसे कहते हैं ना, राइट विंग तो खैर कभी थी नहीं कांग्रेस, एटलीस्ट सेंटर में थी। है वो सेंटर में रहने की वजह धीरे 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 लेफ्ट की तरफ आती जा रही है। वो तो चलो आइडियोलॉजी की बात हो गई, लेकिन अब अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया सपोज कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, तो ही इज़ अ कैबिनेट मिनिस्टर, ही इज़ एन एविएशन मिनिस्टर। अब वो एविएशन मिनिस्ट्री में उनके पास काम, वो देश के लिए काम कर सकते हैं। सिमिलरली ऑल दीज पीपल, मिलिंद देवरा, जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह, फॉर दैट मैटर मिस्टर पायलट। नाउ if Mr. Pilot comes to BJP and he gets a good ministry and he gets an opportunity to serve the people, a fine brain would be put to work who's completely wasted in Congress. So ये एक रीज़न है कि अगर ये लोग सब बीजेपी में आ रहे हैं और मोदी जी इन्हें ले रहे हैं, तो अगर ऑपोजिशन में भी टैलेंट है जो रूलिंग गवर्नमेंट में आके देश को कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है, देन दैट शुड बी वेलकम। आई एम नॉट डिफेंडिंग बीजेपी, बट मैंने जो सचिन पायलट का सवाल सुना वो मुझे उस पर याद आ गया। और दूसरी ये जो डिबेट है कि ऑपोजिशन का रोल क्या है, नो, ऑपोजिशन इज एब्सोल्युटली अनक्लियर ऑन इट्स रोल। जो लोग करप्शन का जिक्र करते थे, जो करप्शन के अगेंस्ट जिन्होंने पार्टीज बनाई, आज वही सब लोग हैंड इन ग्लव मिल के, जस्ट बिकॉज दे वांट टू कीप मिस्टर मोदी आउट, वो सब एक हो गए और वो बात संविधान बचाने की करते हैं। लेकिन सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को वो टारगेट करते हैं। अगर एक जजमेंट कोई जज उनके फेवर में लिख दे, अगर चंडीगढ़ में या मिस्टर जैन की बेल में कोई जजमेंट आ जाए, तो वो लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। अगर केजरीवाल के अरेस्ट को लेकिन वही हाई कोर्ट लीगल बता दे, तो वो कहेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी डेंजर में है, हमारे कोर्ट्स डेंजर में है। मतलब अगर 60 साल तक एक परिवार को आपने पावर में रखा है और सारे जजमेंट्स आपके मुताबिक आए हैं, इन दैट केस when there's just one family, one party who's ruled us for more than 5 decades, in that case democracy was never in danger, constitution was never in danger. But if you have a prime minister whom people like, who has maximum ratings with respect to popularity, not just in India but within Indians outside India, if he comes to power again and again, you suddenly start comparing him to Putin or countries like Iran, एंड गॉड फॉरबिड आप सडनली उस समय आपके लिए, आपकी डेमोक्रेसी, आपके लिए जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, वो सब सडनली ख़राब हो जाती हैं। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। हैविंग सेड सो, हम आगे चलते हैं बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ स्टेट्स टू कवर। तो हमने दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमने इन सब का जिक्र कर लिया। कश्मीर को भी ले लेते हैं। कश्मीर में जनरली ये देखा गया है कि जम्मू में बीजेपी स्ट्रांग रहती है, वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस थोड़े स्ट्रांग रहते हैं। लद्दाख जनरली कांग्रेस की सीट रही है, बट इस बारी लद्दाख में बीजेपी आगे चल रही है इन माय ओपिनियन, जितना भी मैंने रिसर्च करी और ओपिनियन पोल्स देखे हैं, और खुद भी मैं ये कहूँगा कि वहाँ आगे चल रहे हैं वो लोग। और अब हम जो दो बड़े स्टेट्स हैं, यूपी और बिहार, ये ही दो स्टेट्स हैं जो डिसाइड बेसिकली करते हैं किसी भी पार्टी के लिए कि आपको मेजॉरिटी मिल रही है, या अगर मेजॉरिटी मिल रही है तो कितने से मिल रही है। क्योंकि 80 सांसद चुन के 80 MPs कम फ्रॉम यूपी एंड 50 MPs दे कम फ्रॉम बिहार, तो 120 to 130 तो आपके MPs यहीं हो गए। अब सिचुएशन ये है कि बीजेपी इज स्वीपिंग दीज टू स्टेट्स। अगर हम यूपी की बात करें, अक्रॉस सर्वेज, ग्राउंड पे जितने भी लोगों से मैंने बात की है, क्राइम को लेके जितने भी लोगों से मैंने बात की है, everyone is talking praises about योगी आदित्यनाथ। ये आइडियोलॉजी की बात नहीं है, बहुत से लोग उन्हें बुलडोज़र बाबा कहते हैं, बहुत से लोग कुछ कहते हैं, बट स्टेट में एक डिफरेंस फील किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन रिपीटेड इन यूपी। ग्राउंड पे लोग खुश नज़र आते हैं। यूपी में कभी इंडस्ट्री नहीं आई, हमेशा बसपा, सपा, कांग्रेस, इन लोगों ने यूपी को रूल किया है। उनके कंपैरिजन में अगर मैं लोगों से पूछता हूँ, अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है भी बहुत से स्टेट पैरामीटर्स में, पेपर लीक की अभी बहुत बात चल रही थी, लेकिन लोग फिर भी योगी आदित्यनाथ और मोदी की डबल इंजन सरकार को ही देखना चाहते हैं।
अगर आप बनारस में जाएंगे तो आपको बहुत काम करा हुआ मिलेगा, घाट्स पे बहुत काम हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स और रेलवेज दोनों खैर हिंदुस्तान में तो बन ही रहे हैं, बट लोगों ने ये जो एक्सप्रेसवेज हैं जो बन रहे हैं यूपी में, और वंदे भारत जो लॉन्च हुई हैं, और अयोध्या के आसपास जो डेवलपमेंट हुआ है, बनारस के आसपास जो डेवलपमेंट हुआ है, इन सारी चीज़ों से लोग खुश नज़र आए हैं। और लोग बहुत स्ट्रॉन्ग, एक जैसे कभी जनरली देखा नहीं गया है कि दो बारी जिस स्टेट में आपको 60 से ज़्यादा या 70 से ज़्यादा सीटें मिली हों, वहीं उस स्टेट में इतनी स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्बेंसी हो। जनरली एंटी इनकम्बेंसी देखी जाती है, बट यहाँ तो लिटरली प्रो इनकम्बेंसी देखी जा रही है। और जो 3 सीटें हैं, रायबरेली, अमेठी और मैनपुरी, जो यादव्स की सीट है, और रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की 2 स्ट्रॉन्ग सीट्स रही हैं, उनमें भी भाजपा बहुत स्ट्रॉन्ग तक, इनफैक्ट रायबरेली और अमेठी तो भाजपा जीतती हुई नज़र आ रही है। मैनपुरी शायद एक सीट है जो यादव शायद बचा लें, बट वहाँ भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो 80 में से 75 टू 76 सीट्स यहाँ यूपी में बहुत ईजिली जाती हुई नज़र आ रही हैं भाजपा को। जो 3-4 सीटें हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो आपका ऑपोजिशन है उसको। एंड अगर हम बिहार की बात करते हैं तो जेडीयू और एनडीए के अलायंस के बाद वहाँ भी मामले एकदम उलट गए हैं। एलजेपी भी एनडीए का पार्ट है, तो यही लोग मेजॉरिटी में नज़र आ रहे हैं। ये लोग कम से कम 40 के ऊपर सीटें जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आरजेडी और इंडिया अलायंस है और कांग्रेस है, वो यहाँ भी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। मेरे को नहीं लगता है, इन माय विजडम, कि इनको 5 सीटों से भी ज़्यादा यहाँ मिलेंगी, तो वो भी पूरा बीजेपी के पास जा रहा है। तो जब हम ये इन 300 सीटों का जो ये हम देखते हैं, अगर हम बस पंजाब हटा दें, या वादी की एक सर्टेन जो धारा, मतलब जो ट्रेडिशनल वोटिंग रही है, कश्मीर वादी की ट्रेडिशनल वोटिंग, और पंजाब, आपको हर जगह बस भगवा ही नज़र आएगा। सो इट इज़ अ कंप्लीट डेसिमेशन जिसे कहते हैं, क्लीन स्वीप ऑन ऑल बेसिस कवर्ड। अब हम फटाफट ये नॉर्थ और वेस्ट जो 300 सीटें थी, यहाँ पे मेरे हिसाब से एनडीए को तकरीबन 250 से 270 सीट्स आएंगी इन 300 सीटों में से। अब हम फटाफट साउथ का और ईस्ट का जिक्र करते हैं। पहले हम ईस्ट कर लेते हैं कवर। ईस्ट में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, और थोड़ा हद तक आप झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी ईस्टर्न, जो वो सेंट्रल ईस्ट में आप उन्हें कह सकते हो। तो अगर आप हम इन स्टेट्स का जिक्र करते हैं तो वेस्ट बंगाल और में तो जो पिछली बार वो हुआ वही रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। इट वॉज अ स्प्लिट वोट बिटवीन ममता बनर्जी एंड बीजेपी, यही इस बार ये होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी को पिछली बारी 18 से 19 सीटें आई थी 42 सीट्स में से। इस बारी मेरे ख्याल से बीजेपी को 3-4 सीटें और आएंगी। मैं लेफ़्ट और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दे रहा हूँ। मैं 21 से 22 सीटें मैं भाजपा को दे रहा हूँ, और 19 से 20 सीटें मैं तृणमूल कांग्रेस को दे रहा हूँ। बीजेपी बहुत स्ट्रांग लग रही है, और आई थिंक इट्स गोना बी अ स्प्लिट वोट इन माय, I mean, according to me, as per my calculations, BJP should cross 20 seats in West Bengal. उड़ीसा में फॉर द फर्स्ट टाइम जेडीयू प्रेशर में नजर आई, सॉरी जेडीयू नहीं, बीजेडी, बीजू जनता दल, जो हमारे नवीन पटनायक की पार्टी है। यहाँ पे 20 से 21 सीटें हैं। यहाँ पे एक स्प्लिट होता हुआ नज़र आ रहा है, 10 सीट्स ईच। हो सकता है बीजेपी को 1-2 सीट ज़्यादा मिल जाए, और 8-9 सीटें उनको, 12-13 सीटें मिल जाएँ, बीजेडी को 8-9 सीटें मिलें। यहाँ पे एक अलायंस की भी बात हुई थी विच वुड हैव कम्प्लीटली डेसिमेटेड, बट अभी तो अलायंस नहीं अनाउंस हुआ है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। सो यहाँ पे एक स्प्लिट वो नज़र आ रहा है। अगर ये अलायंस हो जाता है तो यहाँ भी आप एक क्लीन स्वीप लगा लो, एंड फिर 21 की 21 सीटें एनडीए में आ जाएंगी। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी बीजेपी स्वीप करती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पे मिला के कुछ 20 से 25 सीटें हैं दोनों स्टेट्स में मिला के। जो एक आधी सीट इधर उधर अगर इंडिया अलायंस या कांग्रेस को आ जाए तो ठीक है।
सारी सीटें बीजेपी को मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ऊपर हरियाणा में भी जहाँ 10 सीटें हैं, मे बी एक सीट शायद कांग्रेस को जा सकती है। कम से कम 8 से 9 सीटें बीजेपी को जाती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम एक ऐसे टेरिटरी का जिक्र करते हैं, इसके साथ हम महाराष्ट्र को भी कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बीजेपी के लिए एक डिफ़िकल्ट जोन है, और अगर इस जोन को बीजेपी नहीं टैकल करेगी तो वो 400 सीट्स नहीं क्रॉस करते। तो हम महाराष्ट्र से एंड करेंगे। एक्चुअली हम ये चारों साउथ इंडियन स्टेट्स का जिक्र कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है कर्नाटक की। अब कर्नाटक में 28 सीटें हैं और बीजेपी और जेडीएस के बीच में यहाँ पे गठबंधन हो गया है। बीजेपी 25 सीट्स पर लड़ रही है, जेडीएस 3 सीटों पर लड़ रही है, और 25 में से मैं 21 to 22 बीजेपी को दूंगा और मैं 3 में से 2 सीटें जेडीएस को दूंगा। तो मैं तकरीबन 23-24 सीटें मैं अगेन एनडीए को दूंगा। और कांग्रेस यहाँ पे कोशिश करेगी कि वो 2014 का प्रदर्शन रिपीट करे, जब बीजेपी को 17 मिली थी और कांग्रेस को 9 मिली थी। क्योंकि 2019 में तो कांग्रेस वॉज डेसिमेटेड, बीजेपी गॉट 25 सीट्स, तो वो तो कांग्रेस वापस नहीं चाहेगी, कंसिडरिंग वो स्टेट इलेक्शंस, दे वन द स्टेट इलेक्शंस विथ डीके शिव कुमार एंड सीतारामैया कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग, बट लेकिन वो लोकसभा इलेक्शंस में वो परफॉर्मेंस ट्रांसलेट होती हुई नज़र नहीं आ रही। कर्नाटका के बाद हम जाते हैं एडजॉइनिंग स्टेट्स में, जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब अगर हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जिक्र करेंगे तो आंध्र प्रदेश में है 25 सीटें, जहां भारतीय जनता पार्टी ने तेलुगु देशम पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है। और तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, और साथ में एक जन सेवा पार्टी भी है यहाँ पे, जेएसपी। ये तीनों एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस के अगेंस्ट। और जो मेन एक्चुअली यहाँ पे ऑपोजिशन है वो है वाईएसआरसीपी, जो जगन रेड्डी की पार्टी है, उनके फादर के बाद कंसिडर मेरे हिसाब से तो उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था। लेकिन तो तेलंगाना के साथ आज जगन रेड्डी वुड हैव बीन अ डायनामिक चीफ मिनिस्टर लाइक रेवंत रेड्डी, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही कांग्रेस के पास होते, बट दैट वाज अ बैड जजमेंट, बैड एरर व्हिच दे डिड। सो यहाँ पे टीडीपी का स्विंग अप लग रहा है और वाईएसआरसीपी का स्विंग नीचे जा रहा है। तो ये जो 25 सीटें हैं, इसमें से मैं 12 से 18 सीटें मैं दूंगा भाजपा और टीडीपी और जेएसपी को, और जगन की पार्टी को मैं 7 से 10 सीटें दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है उनके अगेंस्ट। अच्छा, ये इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए भी इन्होंने अपने सीट एलोकेशन कर लिया है। तो 17 सीटों पे लड़ रही है लेजिस्लेटिव असेंबली में भाजपा। टीडीपी के पास उन्होंने 144 सीट से वो कंटेस्ट करेंगे, और ये जो जन सेवा पार्टी है जीएसपी है 21 सीट से कंटेस्ट करेगी। हैविंग सेड सो, तब अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तेलंगाना। तेलंगाना इज वन गुड न्यूज़ फॉर कांग्रेस। यहाँ पे कांग्रेस इज गेनिंग, और तेलंगाना में 17 सीटें होती हैं। अब यहाँ पे क्या, जो बीआरएस है वो और कांग्रेस को आप देखोगे तो वो उनका रोल रिवर्स हो गया है। बीजेपी को यहाँ पिछली बार ही 4 आई थी, और एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो हैदराबाद से अपनी सीट जीतते हैं एक, उनको 1 सीट आई थी, वो उनको 1 मिलती हुई नज़र आ रही है, और बीजेपी को 4 की बजाय इस बारी 5 से 6 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अब कांग्रेस को लेकिन 9 सीटें मिलती हुई आ रही हैं, और बीआरएस को 2 से 3 सीटें मिलती हुई आ रही हैं, और ये जो फिगर था ये पिछले इलेक्शन में ऑपोजिट था। बीआरएस वॉज द डोमिनेटिंग पार्टी, उनको 8 से 9 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 2-3 सीटें मिली थी। तो यहाँ कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। पंजाब के साथ, पंजाब भी एक ऐसा राज्य है ऊपर जहाँ कांग्रेस को 7 से 8 सीटें मिल रही हैं, आपको 2-3 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 2-3 सीटें मिल रही हैं, शिवमनी अकाली दल को 1 सीट मिल रही है। बीजेपी को जनरली यहाँ गुरदासपुर की सीट ज़रूर मिलती है, जहाँ से विनोद खन्ना लड़ते थे, जहाँ से सनी देओल लड़े हैं, तो ये सीट एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का। तो तेलंगाना, इनफैक्ट तेलंगाना, पंजाब, तमिलनाडु और केरला, ये ही 4 प्लस पॉइंट्स हैं कांग्रेस के लिए, और इन 4 में भी पंजाब को अगर हम हटा दें तो बाकी 3 में बीजेपी बहुत पुश कर रही है, एंड मोदी जी साउथ इंडिया में बहुत एक पुश कर रहे हैं कि इस बारी बीजेपी का तमिलनाडु और केरला में खाता खुल जाए। तमिलनाडु में 1 सीट जीती है कन्याकुमारी 2014 में, केरला में कोई सीट नहीं जीती है, बट इस बारी ये उम्मीद है सबको, पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हाट यू कॉल होप दैट यहाँ से भी दे विल विन सीट्स। So this was about Telangana. Now we'll talk about the last 2 states, which is Tamil Nadu and Kerala.
तमिलनाडु इस डीएमके का स्ट्रॉन्ग बैस्टियन है. डीएमके और कांग्रेस जाहिर सी बात है एक साथ लड़ रहे हैं. बीजेपी इज़ फाइटिंग अलोन. बट यहाँ पे जो 3 से 5 सीटें बीजेपी निकाल सकती हैं वो है कन्याकुमारी, विच दे वन इन 2014. यहाँ पे वो पी राधाकृष्णन को फील्ड कर रहे हैं अगेंस्ट कांग्रेस विजय सावंत. बीजेपी होपफुल है. कोयम्बटूर, जहाँ पे कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है, इट्स अ क्लॉथ इंडस्ट्री, बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस यहाँ पे हैं. अन्नामलाई जो बीजेपी के चीफ हैं स्टेट में, ही इज़ फाइटिंग हिमसेल्फ. दैट्स द न्यूज़ फ्रॉम कोयम्बटूर. देन यू हैव चेन्नई साउथ. चेन्नई साउथ की सीट, ये जो सौंदरराजन थे इन्होंने तेलंगाना की गवर्नर पोजीशन से रिज़ाइन किया है और वो ये सीट लड़ रहे हैं. डीएमके का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है. तंगा पांड्यन यहाँ से एमपी हैं. बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन दैट बीजेपी माइट गिव अ वेरी टफ फाइट. वेलोर फिर एक ऐसी सीट है जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए जानी जाती हैं. बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस पढ़ने आते हैं. वेलोर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी काफ़ी फेमस है. यहाँ पे जो AC शानमुगम है, ही कैन विन, और नॉर्थ इंडियन प्रेजेंस भी है. और एक है कावेरी डेल्टा रीजन से एक सीट बीजेपी निकाल सकती है. तो ये हुआ तमिलनाडु. तो तमिलनाडु में बेसिकली अगर आप देखो तो जो और पुडुचेरी की सीट भी बीजेपी जो एक सीट है वो निकाल सकती है. तो अगर आप ये 39 सीट्स देखते हो तो इसमें तकरीबन मैं 25 से 30 सीटें मैं दूंगा डीएमके और कांग्रेस के अलायंस को. और जो रिमेनिंग इंक्लूडिंग पुडुचेरी, जो बीजेपी को आप 4 से 5 सीटें, और वही सेम AIDMK का भी हाल है, और एक्स्ट्रास को 1-2 मिल सकती हैं. तो AIMDMK एंड बीजेपी आर इन द सेम. मतलब हो सकता है बीजेपी फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ सेकंड फिनिश कर दे, तो उनको 4-5 सीटें, वही 4-5 सीटें AIDMK को मिल सकती हैं. एक वो AIDMK का पूरा वोट इस समय ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है जो हालात हैं स्टेट में. एक सीट पुडुचेरी की, उसमें भी बीजेपी आ गई. सो ये हुई तमिलनाडु के बाद केरला, गॉड जोन कंट्री. यहाँ पे बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला. बट यहाँ पे जो 3-4 सीटें हैं, फर्स्ट सीट है ट्रावेंड्रम, जहाँ पे शशि थरूर इज आइंग फॉर अ 4th टाइम विन. यहाँ पे राजीव चंद्रशेखर, ये बहुत कीनली फॉट इलेक्शन होने वाला है. राजीव चंद्रशेखर हैं. अनिल एंटनी है कि एंटनी सन, ही इज गोना पुट अप अ टफ फाइट वेर एवर ही कंटेस्ट फ्रॉम. देन वी मुरलीधरन है अतिंगल सीट में. ये जो 2-3 और जो सीटें हैं वो हैं अतिंगल, त्रिशूर, और ये जो के मुरलीधरन थे कांग्रेस के, इनकी बहन थी पद्मजा वेणुगोपाल, जो बीजेपी में आ गई हैं. तो अब वो सेम सीट से कंटेस्ट कर रही हैं जो ये अतिंगल की सीट है या नहीं, ये देखने वाली बात है. बट इस पर अच्छी फाइट नज़र आ रही है. जो त्रिशूर की सीट है ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट होने वाली है. एक्टर गोपी, सुरेश गोपी के लिए लॉन्च के लिए काफ़ी एक बड़ा पिच किया था नरेंद्र मोदी ने, और ये त्रिशूर की सीट भी बहुत कीनली फॉट होगी. तो ये अतिंगल, ट्रावेंड्रम, त्रिशूर और एक आलापुझा, एक ये लेफ्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है. बट सोल सीट लेफ्ट जीती थी 2019 में अल्लापुझा. आई एम सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो, साउथ इंडियन प्रोनाउंसिएशन गलत है तो ये भी एक कीनली फॉट कॉन्टेस्ट होने वाला है. नाउ कमिंग लास्ट टू महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की 48 सीट्स हैं. किस करवट ऊट बैठेगा किसी को कुछ पता नहीं दोस्तों. एक बहुत ही उद्धव फैक्शन, अजीत पवार फैक्शन, शरद पवार फैक्शन, बीजेपी, एक खिचड़ी सी बनी हुई है 48 सीट्स में. बट जो प्रिडिक्शन है, मैं आई एम गिविंग 25 to 30 सीट्स to BJP and Munde faction along with Ajit Pawar faction, and I'm giving the remaining to the rest. ये मेरा prediction है. तो final figures दोस्तों, out of 443 I am giving 325 to 350 to BJP alone, and I am giving 375 to 400 to ND. उसके अलावा मैं दे रहा हूँ 40 से 50 सीटें कांग्रेस को, और 40 से 50 सीटें मैं दे रहा हूँ इन 3-4 पार्टीज़ को कंबाइंड, विच इंक्लूड्स तृणमूल, DMK, YSRCP, बीजू जनता दल उड़ीसा में, BJD, आप. ये 4-5 सीटों को मैं 40-50 सीटें दे रहा हूँ. और
जो बची 40-50 सीटें हैं वो मैं अदर्स को दे रहा हूँ. सो दिस इज़ माई प्रोडिक्शन. आई एम प्रोडिक्टिंग अ थम्पिंग विन फॉर एनडीए, फॉर बीजेपी. 400 seats is possible provided they put up a very good show in south and in east. ईस्ट में होता नज़र आ रहा है, साउथ में मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. सो 400 हो सकता है, बट 375 to 400 के बीच तो डेफिनेटली, और सिंगल बीजेपी फिगर 325 और 350 के बीच में डेफिनेटली. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको सर्वे कैसा लगा. इट वॉज अ न्यूट्रल सर्वे. अगर आपका कोई प्रोडिक्शन है, कोई ओपिनियन है, much appreciated. Stay tuned to the next video. I look forward seeing to you all. Happy Navratras. Cheers. Bye.